Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to look at the organic chemistry part from the TIFR exam 2017, and if you have any confusion regarding any of the problems that is discussed here, feel free to make a comment on the comment section. Okay, I'll get back to you. So let's start the video. So the first problem that we are going to talk about it is basically based on the 1H NMR spectra. So what they have given us is basically the multiplicity of the carbons of butanone. Okay, so this is the data that is given to us. Let us look at it. It's a very simple problem. So this is the butanone that we are talking about. So if you look at the structure of the butanone, we know that this carbon 1, since this is a methyl group, there is no hydrogen or no carbon next to it, so this is going to appear as a singlet, and this carbon next to it, the carbon which is C3, since this has 2 hydrogen, so the carbon C4 is going to appear as a triplet, and this is going to appear as a quadret. So it's a very straightforward problem if you know the basics of 1H NMR. I think one of the things that I have found that with the TIFR exam, you need more practical knowledge of 1H NMR. I think the more data that you solve, I think I would strongly suggest students to solve all the problems in the Silverstein books. जितनी ज़्यादा problems आप solve करोगे उतना easy आपका NMR डाटा को interpret करने की ability हो जाएगी. There's nothing magical about it. The more you do it, the more you guys are going to learn. Okay, so this was a very straightforward problem. So the correct answer was option number 3, where C1 appears as a singlet, C3 as a quadret, and C4 as a triplet. So the next problem that we are going to discuss is also on the 1H NMR data. So what do I mean? So जैसे कि मैंने अभी पीछे बोला कि that the more you will solve the problems, the more you will have the ability to counter such problems. So simply by looking at the data, you can reject certain options. Imagine अगर आप ये डेटा देख के ही अगर कुछ ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सको तो कितना ईजी हो जाएगा. सो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. सो व्हाट वी हैव इज अ मैथ डेटा 1H NMR में वो बोल रहा है कि देर आर ओनली 2 सिग्नल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड दे हैव गिवन अस द इंटेंसिटी ऑफ 3 to 2. सो व्हाट दिस कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट टू 3 कैन बी 3 can be means that there is a CH3 group or there is a CH2 group. This is what exactly they mean. Or this could also be multiplication of 3, that is the 6 hydrogen, and this could be 4 hydrogen. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है. अब C13 डेटा दिया हुआ है. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में बोला गया, देयर आर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द रीजन ऑफ 1000 and 1300. ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट सिंपली लुक एट द डेटा. अगर मैं कंपाउंड नंबर बी को देखूं, जैसे कि ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कंपाउंड नंबर बी को अगर मैं देखूं तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैव 3 सिग्नल्स 1H NMR. ठीक है, 3 सिग्नल कैसे? जैसे ये वाला जो कार्बन है, इसके जो हाइड्रोजन उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर कार्बन. सो देर विल बी 3 सिग्नल्स इन द NMR. एक ये वाले हाइड्रोजन का, एक ये जो हाइड्रोजन है CH2 का, एक ये CH2 का, और एक सिग्नल आएगा इन दोनों मिथाइल्स का. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द 1H NMR. इफ वी लुक एट ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर इन द NMR यू आर गोइंग टू सी 4 सिग्नल्स. 4 सिग्नल्स कैसे? आपका एक हो गया मिथॉक्सी का मिथाइल, एक ये वाला पर्टिकुलर मिथाइल 1 2, एंड देन एक इस वाले हाइड्रोजन का 3, एंड देन ये दूसरे हाइड्रोजन का 4. ठीक है, दोनों के दोनों साइड सेम ही है वो. ठीक है, तो दैट्स द रीजन वाई यू आर गोइंग टू सी 4 सिग्नल्स. जबकि NMR के अंदर डेटा हमें क्या कह रहा है? देयर आर ओनली 2 सिग्नल्स. सो यू कैन आउट एंड आउट रिजेक्ट ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दी मास का डेटा. मास का डेटा क्लियरली बोल रहा है कि हमको देयर इज अ स्मॉल सिग्नल एट 1 और 2, एंड देन देयर 2 लार्ज आयंस. ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी के केस में. अगर हम डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का, ठीक है, मिथाइल रेडिकल लेकर निकल जाता है, वी डू गेट अ मास पीक ऑफ 87, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. सो सच सॉर्ट ऑफ अ फ्रेगमेंटेशन इज हाईली अनलाइकली. ठीक है, सो इसकी वजह से हम फॉर द टाइम बीइंग वी कैन रिजेक्ट दिस ऑप्शन. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे पास है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वाज दिस वन. अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मिथाइल का हमारा डीफ्रेगमेंटेशन होता है, सो व्हाट डू वी गेट इज दी M/Z 87 विच इज़ अ लार्ज पीक, एंड हियर व्हाट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर. और हमको पता है दिस इज हाईली स्टेबलाइज बिकॉज व्हाट वी हैव इज अ ऑक्सीजन नेक्स्ट टू इट. सो ऑक्सीजन कैन लैंड इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर,
एंड कैन स्टेबलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, दोनों के दोनों ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर सकते हैं. सो दिस दैट इज़ द रीज़न वाई वी माइट सी अ लार्ज पीक. उसके अलावा लेट अस सपोज अगर यहाँ से भी फ्रेगमेंटेशन और यहाँ से भी फ्रेगमेंटेशन हो कि आपका आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन आपका बना, तो दिस इज गोइंग टू हैव द M/Z of 43. So from based on the mass data, option number A seems to be the राइट आंसर. ठीक है, और ऊपर से हम C13 वैल्यूज़ भी देख लेते हैं. 108 आपका कौन सा वाला आएगा, और 108, 64 एंड 62. अब मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट 25 पे आपका जो कार्बन आ रहा है वो वाला होगा आपका दिस पर्टिकुलर मिथाइल. ठीक है, और CH2 आपका जो होगा वो 64 पे है, मतलब ये वाला जो कार्बन और ये वाला कार्बन 64 पे. और 108 पर जो होगा इट इज़ गोइंग टू बी दिस क्वाटर्नरी कार्बन, क्योंकि दिस इज अटैच टू 2 ऑक्सीजन्स विच आर विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस इज गोइंग टू कम एट हायर डाउन फील्ड 313 NMR में. सो बेस्ड ऑन दिस डाटा इंटरप्रिटेशन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. अगला प्रॉब्लम हमसे जो पूछा गया है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी 1H NMR. यहाँ पे हमें क्लियरली बोला है अ कंपाउंड दिस इन दिस फार्मूला स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन एट 3300 to 3400 बोला हुआ है. 1H NMR के अंदर दे आर टेलिंग अस इज 3 सिंगलेट दैट वी आर गिवन, मतलब 3 सिंगलेट आ रहे हैं, उनका रिलेटिव रेशियो हमको बताया हुआ है कितना है. अब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो बताई गई है, एडिशन ऑफ D2 एलिमिनेट्स दी लोअर फील्ड सिग्नल. मतलब जब आप डालते हैं D2O, आपका लोअर फील्ड सिग्नल इन डाटा के अंदर देखें 3.45 पे है, दिस इज गेट्स एलिमिनेटेड. सो इसका क्लियरली यही मतलब है इसका कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में OH प्रेजेंट है. ठीक है, आइदर फिनॉलिक या एल्कोहलिक प्रेजेंट है उसके अंदर. ठीक है, और दिस इज फर्दर गेट्स कन्फर्म बाय द IR डाटा. सो प्रिलिमिनरी नॉलेज के हिसाब से हम आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, ये ऑप्शन नंबर जो B है हम उसको आउट एंड आउट रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये ईथर है. दिस इज जस्ट नो वे दिस द कंपाउंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट ईथर. आगे का हम बाकी डाटा देखते हैं. सबसे पहले तो हमने क्या किया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लिया जो कि 0 है. सो इट मीन्स जो भी मॉलिक्यूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट डजंट हैव एनी रिंग और डजंट हैव एनी डबल बॉन्ड हियर. जैसे कि मैंने बोला ऑप्शन B को हमने रिजेक्ट किया. नाउ लेट अस लुक एट दी 1H NMR डाटा. कोशिश करते हैं कैसे. हम 1,5 पेंटेनॉल की बात करते हैं. 1,5 पेंटेनॉल के अंदर वी आर गोइंग टू सी 4 सिग्नल्स इन दी NMR. जैसे पहला सिग्नल आपका इस वाले CH2 का आएगा, इसका और इसका एक, ये वाला और ये वाला CH2 का 2, और इस वाले CH2 का 3, और OH का अगर हाइड्रोजन का आएगा 4. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी 4 सिग्नल्स, जबकि यहाँ पर NMR में 3 आ रहे हैं. सो वी कैन रिजेक्ट दिस. 2,4 पेंटेन डायोल का देखते हैं. अगेन दे आर गोइंग टू बी 4 सिग्नल, एक इस हाइड्रोजन का, एक यहाँ पर जो आपका CH का इस हाइड्रोजन का 2, एक मिथाइल का 3 और एक CH2 का 4. सो दिस इज ऑल्सो वी कैन रिजेक्ट. सो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज ऑप्शन नंबर C. अब इसका डेटा हम देखते हैं. सो दे आर गोइंग टू बी लाइक 1 सिग्नल फॉर दीज 2 मिथाइल. Okay, and then there are going to be 1 signal for these 2 CH2, and there's going to be 1 signal for these 2 OH. So they are going to be like 3 singlets that we are going to see. और उसका रेशो भी अगर हम देख लें तो रेशो क्या 3:1. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तीनों को, इसको अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, we can see this is going to be 3:1. So the correct option in this case was option number C. Now the next problem that was asked to us, it was based on the very well known reaction, Mitsunobu reaction. It's a very straightforward reaction. So what we have is a molecule having a OH group. Here what we had is an ester. So what the condition is like triphenyl phosphine. This is the dead reagent that is given to us, and what we have is a nucleophile which is the benzoic acid. So let's jump into it. So this is the reagent which is called diethyl azodicarboxylate dead. इसका mechanism straightforward है. So the lone pair of electron on nitrogen of the dead reagent, what it does, it plucks the hydrogen from the acid. So what it generates is this benzoate carbanion. ठीक है, benzoate anion अब generate हो जाता है. So in the next step what happens, the triphenyl phosphine oxide it attacks this nitrogen to release this positive charge on NH. आपका ये बन गया. हमको क्लियरली पता है एज सून एज दिस इज द एक्टिवेटेड रिएजेंट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ये आपका एक्टिवेटेड रिएजेंट है जो फॉर्म होता है. ठीक है, आपका जैसे ही ये फॉर्म होगा वी नो दैट द ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर फॉस्फोरस. बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बिकॉज इन पर्टिकुलर रिएक्शंस का ड्राइविंग फोर्स ही क्या होता है, इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनल फॉस्फीन ऑक्साइड. मतलब ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इन रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका प्रमोट करता है. ठीक है, दैट इज़ वाई ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करता है. इट रिलीजेज दिस एमीन. ठीक है, डाईअमीन आपको रिलीज हो जाता है. एंड व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज दिस इंटरमीडिएट या फिर आप कह लीजिए फॉस्फीन सॉल्ट कह लीजिए.
और इस पर्टिकुलर स्टेज पे व्हाट हैपन, जो आपने पहले स्टेप के अंदर आपने बेंजोइड सॉल्ट रिलीज किया था, व्हाट इट डज, इट अटैक्स फ्रॉम द बैक. सो हियर इट इज SN2 सब्स्टिट्यूशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट यू ऑब्जर्व इज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. इसने यहाँ से बैक साइड अटैक किया, ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ. सो व्हाट यू जनरेट इज अ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, एंड दिस इज द डिजायर्ड आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया विद द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था. तो जो करेक्ट आंसर था इस केस के अंदर, इट वाज ऑप्शन नंबर बी. So the next problem that we are going to talk about, it was based on the benzyne chemistry. So in the information आप ये ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दी बेंजाइन. उसके अंदर मैंने क्लियरली मेथड ये डिस्कस किया हुआ है दैट दिस इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ बेंजाइंस, जहाँ पर आप क्या करते हैं, आप TMS लेते हैं, दिस इज ट्राइमेथाइलसिलाइन, और ये आपका क्या है, ट्रिफ्लेट है. और हमको पता है कि अगेन जिस तरह से फॉस्फीन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, उसी तरह से सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इज दिस फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड. सो जैसे ही आप यहाँ पर फ्लोरीन डालते हैं, यहाँ पे सीजियम फ्लोराइड की जगह आप टेट्राब्यूटिल अमोनियम फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते थे, हाइड्रोजन फ्लोराइड पिरिडीन भी यूज़ कर सकते थे. लेकिन जनरली वेन एवर यू आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ एरोमेटिक TMS ट्रिफ्लेट, दिस इज मच मोर ईजियर, बिकॉज इस कंडीशन में हमने सॉल्वेंट नहीं दिया. यहाँ पे सॉल्वेंट आपका एसिटोनाइट्राइल होता है इस केस के अंदर, एंड यू कैन जनरेट दिस बेंजाइन एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आप जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. तो फ्लोराइड ने यहाँ अटैक किया, दिस बॉन्ड मूव्स, एंड द ट्रिफ्लेट बीइंग अ ट्रिफ्लेट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीविंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. So वो लीव कर जाता है, what you generate is a benzyne. And as I said that this exact example I have already covered in my video on the benzyne. और उसके अंदर इस method के अलावा I have discussed whole lot of methods that are generally used nowadays for the synthesis of benzynes. ठीक है. So benzynes are very well known for their to undergo Diels-Alder reaction. यहाँ पर आप फ्यूरान के साथ ट्रीट करेंगे तो this is the kind of via which 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन आपका हो गया, उसके वाया इट गिव्स यू कंपाउंड नंबर Y. ठीक है. सो दैट वाज द डिजायर्ड प्रोडक्ट. यहाँ पर आपका फ्यूरान की जगह आपका साइक्लोपेंटाडाइन भी हो सकता था. ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन हो सकता था. यहाँ आपका थायोबीन भी हो सकता था. इट वुड हैव गिवन यू द सेम प्रोडक्ट. सो द डिजायर्ड प्रोडक्ट और द करेक्ट प्रोडक्ट इन दिस केस वाज ऑप्शन नंबर C. ठीक है. So the next problem that was asked is not generally taught in the class. उसका reason मैं आपको simply बताता हूँ क्या कि hydroboration obviously it is being taught right from class 12, so we all know about it. But I think the most important feature about this particular question is this reaction condition which causes heat. Generally, whenever you are performing the hydroboration reaction, the reaction conditions are usually at 0 degrees. You perform them at the lower temperature because there is an exotherm when you are performing such reactions. Now, what does this heat do in this particular case? Now, एक तो हम चीज़ देख सकते हैं कि दैट द हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट दैट वी आर डीलिंग विद इट्स अ क्वाइट अ बल्की रिएजेंट. ठीक है, तो वो करता क्या है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स. हमको पता है कि हाइड्रोबोरेशन होता है, इट ऑलवेज एड्स इन अ सिन मैनर. जो बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इट ऑलवेज एड्स ऑन ओलिफिन इन अ सिन मैनर. और बोरेन हमेशा अटैच करता है अपने आप को टू द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड. ये ऑलरेडी इतना बल्की है, सो दिस इज हाउ इट कोऑर्डिनेट्स टू द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन. और हाइड्रोजन हमारा डिलीवर्ड हो जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द olefin. So via which this is what you end up getting. Now that is exactly what the role of heat is. Most of the students क्या करते कि यहाँ पर छोड़ देते and you would have ticked option number B as the right answer, but no, in this case as soon as you heat, what happens, there's an elimination of the same reagent. So the borane reagent that you started with, it is released to give you this terminal olefin. So in a way, using this reagent what you're forming is starting from 2-methyl 2-butene, you're forming 3-methyl 1-butene. मतलब यहाँ पर आपका जैसे ही आपका टर्मिनल ओलिफिन फॉर्म हुआ, ये आपका रिएजेंट क्या करता है, फिर से यहाँ पर सिन एडिशन हो जाता है इस ओलिफिन पे, जहाँ पे बोरेन अटैचेस इटसेल्फ टू द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन टू गिव यू this particular borane. So that the correct answer for this particular question was option number C. It's a very very good question and this elimination is triggered by heat. ठीक है.
So generally in the TIFR exam per every year there is a question that is asked on the bioconjugation reaction. So this is no different. So here what we are talking about, they're talking about a protein which is having an NH2 group, thiol group and carboxylic acid group, and here what we have is a fluorosine, and important thing is what we have is this azurine ring, and the pH that we're talking about is 7.9, so it is slightly on the basic side. So we can clearly imagine that here we are talking about the nucleophilic substitution or nucleophilic opening of this azurine ring. Now out of amine and thiol, which one is more nucleophilic? We know it is the thiol, since nitrogen is more electronegative as compared to sulfur, so the lone pair of electron nitrogens are held much closer to nitrogen as compared to sulfur, as a result of which we know that sulfur is more nucleophilic than the nitrogen. So under the slightly basic condition, it is the thiol that is going to attack this carbon to open the azurine ring. It's a very simple reaction. So this is exactly what happens. The thiol, it attacks, it opens the ring, so to give you rise to the formation of this particular bioconjugate between the protein and the fluorosine moiety. Okay, it's a very straightforward simple question. Answer was option number B. So the next problem that was asked to us was about the cyclooctatetracene. This is something that we have been studying right from class number, I don't know, from bachelor's or master's, we know about that. Cyclooctatetrene, we know it is cyclic, it is conjugated. Flat, we will see. I mean, from what we see, since it is conjugated, so it should be flat. Obviously, it should be flat, right? It doesn't have 4n plus 2 electron, so it is not aromatic. This is the Huckel's rule. But it does have 4n electrons. ठीक है, 4n pi electrons, because 4n में अगर हम करेंगे तो कितने आ जाते हैं हमारे इसके? It has 8 pi electrons. So from the data that we see, it should be anti-aromatic. बट सवाल क्या होता है कि इट इज़ नॉट एंटी एरोमेटिक, इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक. उसका रीज़न क्या है? वी नो दैट एंटी एरोमेटिक इज़ मोर अनस्टेबल देन दी हमारा नॉन एरोमेटिक से. मतलब नॉन एरोमेटिक हमारा क्या होता है कि इट इज़ फार मोर स्टेबल देन दी एंटी एरोमेटिक. और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो इट इज़ ऑलवेज दी एरोमेटिक एंड देन followed by non-aromatic and then anti-aromatic. ठीक है. So what it does कि उसकी वजह से cyclooctatetracene क्या होता है? It escapes that anti-aromaticity and it adopts this tub shape, जिसकी वजह से it is no longer flat, and that is the reason why it becomes non-aromatic, because this is exactly what it says. Now it adopts the tub shape form, so it is no longer planar and it does not follow the Huckel rule. Okay. So in this particular question they said that कि जितने भी हमारे natural amino acids हैं, they react with cold nitrous acid and they produce nitrogen gas. Now out of the options that are given to us, one of them does not give this particular reaction. Now actually होता क्या है? So whenever you treat an amino acid which is either in a peptide form or it's in a protein or it's a free amino acid, अगर उसके अंदर there is a free amine group that is present, and if you treat it with the नाइट्रस एसिड, व्हाट यू जनरेट इज अ नाइट्रोजन गैस, और आपका जो अमीन कन्वर्ट हो जाता है OH में. सो द फ्री नाइट्रोजन, आपका जो फ्री अमीन है, दैट गिव्स यू अ मेजर ऑफ वेदर दैट अमीन ग्रुप इज फ्री इन दैट मॉलिक्यूल और नॉट. अगर आपका अमीन ग्रुप फ्री नहीं है और फिर इट इज इन अ साइक्लिक फॉर्म और if it is present as an amide, then this particular reaction is not going to take place. So simple answer इसका क्या होगा? We are going to look at the structure that will give us the clear answer. So if we look at the structure, out of all of them, it is in the case of the proline that amine is cyclic, as a result of which it is this particular amino acid which is not going to give you this reaction. So it's a very straightforward question, memory based question tha. So one of the things I think you have to remember the structure of all the amino acids, क्योंकि इसमें से एक question तो आता ही आता है. So the next question that was asked to us, it was what is the relative rate of reductive elimination for this particular reaction. So what is happening here? What we have is a platinum plus 2 oxidation state that is undergoing reductive elimination to give you palladium 0, and in the process what we are generating is this methane. Now बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अब एक चीज़ बताइए, रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे प्रमोट होगा? हम एक अपनी सिंपल और केमिस्ट्री की नॉलेज लगा के कोशिश करते हैं समझने की. नाउ
ये हम यहाँ पर ये वीक क्या कर रहे हैं, हम अपना प्लेटिनम हाइड्रोजन और प्लेटिनम कार्बन बॉन्ड को वीक कर रहे हैं, ठीक है। तभी हमारा ये रिडक्टिव एलिमिनेशन हमारा फिसाइल है, मतलब ये हमारा प्लेटिनम हाइड्रोजन और प्लेटिनम कार्बन बॉन्ड तभी हमारा ब्रेक होगा, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर जो हमारा एल अटैच है, ये वाले एल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करें मेटल सेंटर से, और हमारे मेटल सेंटर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ डेंसिटी वही ग्रुप विड्रॉ कर सकते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो। अब हमारे ये एल यहाँ पर क्या, हमारा ये फॉस्फीन लिगेंड्स हैं। अब इस फॉस्फीन लिगेंड्स के साथ ये एराइल रिंग अटैच है टू विच दिस एक्स इज अटैच। और ये एक्स क्या है, हमारे हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल एंड मिथॉक्सी। नाउ आउट ऑफ ऑल दीज फोर वी नो दैट क्लोरीन इज द वन which can withdraw the electron density because of its electron withdrawing nature, ठीक है, क्योंकि हमारा क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकता है। अगर वो ऐसा कर रहा है सो इट मीन्स इट इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द मेटल सेंटर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट इज मेकिंग प्लेटिनम हाइड्रोजन प्लेटिनम कार्बन बॉन्ड वीकर। तो जो भी ऑप्शन है जिसके अंदर हमारा क्लोरीन क्या है, फर्स्ट है, इट इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। और हम क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 के केस के अंदर ही वैसा है हमारा, ठीक है। सो इन दिस केस ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, और वो लॉजिकल भी है क्योंकि हमारा क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद मिथाइल है, मिथॉक्सी। हमें पता है मिथॉक्सी हैज़ द मोस्ट, इट कैन पुश द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द मेटल सेंटर। अगर वो पुश करेगा तो मतलब देयर इज गोइंग टू बी like much difficult for this platinum hydrogen platinum carbon to break and undergo reductive elimination. Okay, so the next question that was asked to us was the reaction between the lithium aluminum hydride and triethylamine ka HCl salt in toluene, and they have asked what is going to be the product. It's a very straightforward question. Now we know that lithium aluminum hydride is a source of hydride, and here what we have is an HCl salt. This is H plus, and from here hydride जब मिलेंगे so what is going to give us the hydrogen gas. एक तो हमारा हो गया. Second thing, the chloride ion that is left behind, it is going to get it is going to achieve the neutrality when it combines with the lithium. So it is going to give you lithium chloride and hydrogen. Plus हमारा बच क्या जाएगा, हमारा बच जाएगा ट्राइथैलामीन एंड एलेन। हमको पता है इस एलेन इज अ वेरी गुड लुईस एसिड, एंड ट्राइथैलामीन behaves like a Lewis base. So what it forms, triethylamine gives electron to the Lewis acid which is alane. So the product of this particular reaction is option number C. Okay, so if you like the video, share it with your friends, and if you have any doubt, do let me know. Okay, thanks a lot for watching the video. Have a very good day. Bye.